Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. Today we will do charcha on sloka number 403. What is the series? Now the series is Advitiye Pare Tattve Nirvisheshe Bhidakutaha. It is the theme what we are learning from last three slokas. That what is Advitiya, what is Param Tattva, where there is no vikalpa, where there is any difference. भेद कहाँ पर हो? हमारे समाज की, हिंदू समाज की भी, सनातन समाज की भी जो भेद बहुत सालों से है, जिसमें से हमारा इतना नुकसान हुआ है पूरा देश की. Have you ever thought ये सनातन तत्व जो आज भी नया है, जिंदा है, फिर भी so many invasion. एक्चुअली इन्वेजन नहीं, आप अगर हिस्ट्री को ठीक से पढ़ेंगे, बिफोर बुद्धिज्म our Sanatan Dharma was in a very horrible condition. Paurahitva Pratha, so many rituals and ritualistics, but there are so many divisions. You can't do that, you can do that, you have to do that. And जब पुण्य की फल अदृष्ट होता है, you can't force. You can tell if you calm these things, then these things will happen. That we tried. Like, don't take it otherwise. Like our classes. We appeal to everyone else that those who are nearby, please join the class. Because there are hell and heaven differences between the offline and online. तो आप लोग जो कर रहा है, जिनको हो रहा है, वो आप आ रहे हैं. अगर किसी का नहीं होगा तो जो हैदराबाद में रहते हैं, जिनका बहुत बीमारी है, वो क्या करेंगे? उनके लिए क्लास सबसे बड़ा रकम रखता है. उसके बाद तो उन लोग ऑफलाइन नहीं पा रहा है, हो रहा है तो उनसे तो ऑनलाइन कर रहे हैं. लेकिन ऑनलाइन भी तो सब लोग नहीं कर रहे हैं. सो व्हाट वी कैन डू? वी कांट फोर्स, वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड. धर्म का उदार अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए. लेकिन ऐसे सीमा पर पहुंच गया था, people were thinking to come out of it, and second option नहीं था. कुछ साल पहले, मतलब maybe 5 decades or that, in the southern part of our country or in eastern part also, 50-60 years back, अगर कोई ब्राह्मण, कोई नीचू जात वाला किसी का साया भी स्टेप ऑन करते थे तो उनको प्रायश्चित करना पड़ता. ऐसे सामाजिक स्थिति अगर 60 साल पहले होगा तो 2500 साल पहले क्या होता था? तो people wanted something else. That is why Buddhism came. जब बुद्धिज्म का भी ऐसे घटिया अवस्था हुआ कि तब लोग बुद्धिज्म को लेकर भी परेशान हो गया. And cream of the first what happened? The problem of Buddhism in the application. It is in a supreme thing. Wonderful dharma. Because Bhagavan Buddhadev took the gist of Upanishad only. If you read
And on that day, on Friday, Saturday, we went to Moore Avenue. So they were reading from Pitakas, and in the Pali language, and Pali and Sanskrit are the parallel languages. You know, everything. Even first Pitak was starting, what is meaning that you can remember, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसी जन्म में निर्वाण लाभ करने का कोशिश कर। दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्यम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संचय। ये तो हमारा प्रकरण ग्रंथ की बात है जो बुद्ध देव ने उठाया, और बहुत सारे उन लोग जो पढ़ रहे थे, जितना कुछ समझ में आ रहा था, मेरे सारे उपनिषद की श्लोक याद आ रहा। सो ही हैज टेकन फ्रॉम दैट इटर्नल नेक्टर। बुद्धिज्म का जब ऐसे हुआ ना, देन इस्लाम के, बुद्ध की जो नीति, थोड़ा बहुत जो एक ईश्वर और कोई ईश्वर नहीं, ऐसे भी, मतलब बुद्धदेव कभी नहीं बताया कि ईश्वर है या नहीं। He never discussed on it. He kept quiet. लोग सवाल पूछा, ईश्वर है? He was silent. ईश्वर नहीं है? Silent. Means people in that mind. And Islam came, where they gave the same platform for everyone else. राजा और भिखारी एक साथ प्रार्थना करें। बुद्धदेव भी ऐसे, क्योंकि उनको खराब लगा कि भगवान की सृष्ट जीव में हम लोग कौन है भेद करने वाले। तो ये भेद क्यों आया ना? सनातन धर्म को जो लोग पहचाना नहीं, उन लोगों के लिए भेद, ये अहंकार की प्रकाश। कैसे अहंकार की प्रकाश? अब थोड़ा गहर से सोचिए। अहंकार हर वक्त बढ़ना चाहते हैं। In the whole society, you will see people want that someone will be in the chair of Guru, and hundreds of thousands of millions of billions of trillions of devotees will follow. But our Gurudev proclaimed, I don't want to be a mule guru, that whole life I will carry you. You have to come in my position. It was the statement of Buddhadev also, because his name was Gautam. He earned that Buddhatva and became Buddha. And he proclaimed, every one of you can be a Buddha. Our Gurudev also told the same thing. Our Upanishad also told the same thing. Upanishad never told, because from the first thing, Upanishad told, Amritasya Putra. Sab log Amritasya Putra. And Advitiye Pare Tattve Nirvisheshe Vidakuta. This is the essence of, this is Mahavakya. If you think, Advitiye Pare Tattve Nirvisheshe Vidakuta means there is no difference between two animals, man and animal, two men, two women. There is no difference. All the differences are in the body. Clear? So that, and why it happened? Because of the अज्ञान. लोग पढ़ना नहीं चाहते थे. So हर धर्म में आप देखेंगे जो आचार्य है, his sole work was to insist student, you study. First listen, then study. So this is the Acharya's, actual Acharya's work, who will inspire student that you study,
and you come to my mental state, my position, not in that you will be the acharya of Chinmay mission. This is a very fragile post. Tonight that letter will come that Divakar, you have to go to that place. I have to go, but the state of mind I am having, that you also can reach. That's the proclamation. From that perspective, those sets of slokas have been composed. Clear? Tejasev tamo yatra pralinam bhranti karanam advitiye pare tatve nirvisheshe vidakutaha तेजसीव तमो यत्र प्रलीनं भ्रांति कारणम् अद्वितीये परे तत्वे निर्विशेषे भिदा कुतः। यत्र, जहां पर, वह तेजसी तमः इव, तेजसी सप्तमी, इन तेज, इन प्रकाश, इन सूर्य, in the sun, grossly you understand. तमा इव, आलोक में अंधेरा जैसे, भ्रांति कारणम प्रलीनम, जहां पर प्रकाश होता है वहां पर अंधकार नहीं होता है। अगर अंधकार आप देखेंगे तो ये भ्रांति है। जैसे जिनके आंख में कुछ प्रॉब्लम होता है, आप पूछ सकते हैं उनको, जब आप एक दृष्टि से सूर्य देव को देखेंगे तो आपको लगेगा देयर आर सम फ्यू ब्लैक स्पॉट्स ऑन सन। यू कैन आस्क एनीवन एल्स हु इज हैविंग सम प्रॉब्लम। यस, सो दिस इज भ्रांति। आपका दृष्टि ढक गया है, सूरज नहीं ढका। श्लोक क्या है बोलिए ना? ओ विजय माने, घनच्छन्न मार्का घनच्छन्न दृष्टि। ये जब बरसात में ये, या कभी कभी कोहरा में ऐसे लगता है कि सूरज नहीं उठा आज। आप अगर बंगाल छोड़ के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इस जगह पर जाएंगे तो दोपहर को 11-12 बजे तक कोई सूरज नहीं। तो ऐसे नहीं कि सूरज उठा नहीं, लेकिन हमारा दृष्टि ढक गया है कोहरा के वजह से, बादल की वजह से। ये भ्रांति है। तो तेजसी, तेजसी तमह इव भ्रांति कारणम प्रलीनम, जहां पर प्रकाश के अंदर अंधेरा की भ्रांति प्रलीनम एकदम विलुप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में अद्वितीय निर्विशेषे परे तत्वे भिदा कुतः, जिनकी पास सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, तब अंधेरा की भ्रम चला जाता है, तब भेद कहां रहेगा? फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ गोल्डस्मिथ, देयर इज नो डिविजन इन द गोल्ड। एक बात मैं हर वक्त बोलता हूं कि एक भक्त, अचानक उनका कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, तो उनकी दादा परदादा के रखा हुआ एक सोने की गणपति उनके वाहन के साथ थे। तो उन्होंने चूहा को जमा किया, बोला मैं बेचना नहीं चाहता हूं, आई एम हैविंग सम
टेम्पोररी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन माय बिजनेस, तो इसके बदले में आप मुझे कुछ रुपया दीजिए। तो उन्हें गोल्ड स्मिथ के पास मूषिक भगवान को, चूहा को लेके गया, तो सोने की भाव कैलकुलेट करके उन्होंने बताया इतना। तो 2 दिन के बाद और कुछ पैसे की जरूरत हो गया, वो गणपति को भी लेके गया। तो गणपति का जब रेट दे रहे थे, उनका इतना खराब लगा कि चूहा का जो रेट है वही रेट आप गणपति के भी ले दे रहे हैं। तो गोल्ड स्मिथ ने बताया, देखो बेटा, तुम भगत हो, ठीक है, मैं भी भगत हूं, लेकिन उसमें तो फर्क है। हमारे इष्ट देवता है और उनका वाहन कभी एक नहीं, लेकिन जिस ग्रॉस मटेरियल से ये बना हुआ है इसमें कोई भेद नहीं। तो प्रकाश में कोई भेद नहीं होता, भेद तो अंधेरा से चालू होता है। ये है, ये है, ये है, और पूरा अंधेरा में भी नहीं। हमारे जो रज्जु सर्प दोष होता है ना, जो रज्जु में सर्प दर्शन, ये पूरा अंधेरा में नहीं होता है। अंधेरा में तो कुछ नहीं दिखाई देता है। तो कहाँ होता है? when we are in a semi darkness condition, little bit light, little bit अंधेरा। हमारे पास ज्ञान एकदम नहीं है ये बोल नहीं सकता, जो नहीं है वो आ नहीं सकता। आप सबके पास ज्ञान है लेकिन छुपा हुआ है। मैं कोई नया बात नहीं बोल रहा हूं, ये व्यासपीठ से बोलकर मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, आपके अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है उस के ऊपर जो मोटा अज्ञान की चादर चढ़ा हुआ है, all the Guru Parampara is trying to remove that cover, that you can, bloom in your own. वेदांत कभी नहीं विश्वास करते कि आप कोई गुरु के पास जाएंगे और वो आपको माथा पर हाथ रखेगा और आपका चैतन्य, ऐसे कभी नहीं। ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण का जरूरत ही नहीं होता 700 श्लोक बोलने की। ओ तुम्हारा मोह हुआ है, आओ टच कर देता। टच बिजनेस नहीं है वेदांत। सो यू आर potentially divine, but you don't know about your divinity. All the acharyas try to remove the darts, because of that, because of which you can't understand your own divinity. अज्ञान, जैसे आपको भूख लगा है, आपका भूख कैसे मिटेगा? चलो बहुत अच्छा, 100 ऑस्कर मिला है एक पिक्चर, देखने जाएंगे, भूख मिटेगा? रोल्स रॉयस कार खरीदा है, चलो थोड़ा घूम के आए, अरे नहीं भाई, भूख लगा है, कुछ कोई चीज का जरूरत नहीं, एक बाटी मूढ़ी दो मुझे। अगर आप कुछ नहीं दे पाते हैं तो एक बाटी मूढ़ी दो, वही मेरा सोल्यूशन है ना? जिनको प्यास लगा है उसको आप जितना भी दुनिया के सबसे अच्छा खाना खिलाओ, बोले खाना नहीं, अभी पानी का जरूरत। जिनका समस्या अज्ञान है उनका सल्यूशन ज्ञान है और कुछ नहीं है। ना तो फूल, ना तो पत्थर, ना तो ताबीज, ना तो कवच, कुछ नहीं बाबा। प्रॉब्लम छुपा हुआ है आपकी अज्ञान से। अज्ञान को मिटा दो, देखो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अंधकार कोई वस्तु नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू नो द थिंग्स। अंधकार क्या है? इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधकार हैज नो सब्सटेंस। अंधकार कोई वस्तु नहीं है। उजाला की अभाव ही अंधकार है। ऐसे ही अज्ञान कोई वस्तु नहीं है। योर सबस्ट्रेटम, आपकी स्वरूप है ज्ञान। अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म।
ब्रह्मन की, जो ब्रह्मन आप है, तत्वमसि, जो ब्रह्मन आप है, उस ब्रह्मन का सबस्ट्रेटम क्या, स्वरूप क्या, प्रज्ञानम। तो वस्तु एक ही है, वो क्या है, ज्ञान। अज्ञान क्या है, उसी ज्ञान की भ्रांति स्वरूप अभावी अज्ञान है। ज्ञान होने से ही अज्ञान चला जाएगा। तेजसी इव तमः यत्र प्रलीनम। तेजसी मतलब आप आग भी सोच सकते हैं, आगन, आगुन में, आग में जो उजाला है, उसमें तमः प्रलीनम, अंधकार विलुप्त हो जाता है। और अंधकार को क्या बोल रहा है, न भ्रांति कारणम। अंधकार के लिए ही हमारे जीवन में भूल हो जाता है। जब अंधकार होता है तब सावधान होना पड़ेगा। कठोपनिषद बोल रहा है, जीवन कैसा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्वया दुर्गम पथस्त्वा कवयो वदन्ति। अज्ञान के छाए हुए व्यक्ति का जीवन कैसे है, न जैसे रात के अंधेरा में, बहुत दुर्गम पथ है। इसके लिए आपके लिए एक ब्रिज बना हुआ है। और ब्रिज कहा, किससे बना हुआ है, न विथ अ शार्पेन सोर्ड, जिनके ऊपर से आपको चलना पड़ेगा। इफ यू लूज योर कॉन्सियसनेस फॉर ए बिट, यू विल बी कट इनटू पीसेस। साधन जीवन में तो और सावधानी का जरूरत है। हमारे पूरा जीवन में ही सावधानी का जरूरत है। थोड़ा सा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन में, चाहे वो हमारा साधन जीवन। जीवन तो एक साधन ही है ना, साधन कोई ऐसे नहीं। हमारे साधन तो सावधानी है। वेदांत की साधन सबसे सुविधाजनक। इस साधन के लिए आपको मूर्ति खरीदना नहीं पड़ता, फूल खरीदना नहीं पड़ता, बिल्व पत्र प्रसाद कुछ नहीं, लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, घर को रंग करना नहीं पड़ता, कुछ नहीं। यहां पूजा ही है सावधानी, उपकरण भी है सावधानी। इसलिए कि हमारा जो एम है, लक्ष्य है, सावधानी से उनमें चले जाने का। क्योंकि बहुत सारे खिंचाव है हर वक्त, हर व्यक्ति के पास आया। जब बुद्धदेव समाधि के लिए बैठे, उस समय भी मार आए। हमारे जो ऋषि मुनियों लोग ये करते थे, तब उर्वशी, मेनका, दे यूज्ड टू कम। डोंट टेक इट फिजिकली, mentally. All the vasanas, urvasi, menka is not the women, all our vasanas. I want to be these things. I am expecting this position, not in the office, not in the ashram, even in the family. People will listen to me. हस्बैंड वाइफ का तो वही प्रॉब्लम है। वाइफ शिकायत करते हैं, स्वामी जी आपको पता नहीं, पूरा जिंदगी भर मेरा एक बात भी उन्होंने नहीं माना, अगर मानते तो कितना कुछ हो जाता। हस्बैंड की भी वही शिकायत है कि मेरा वाइफ कभी मेरे बात सुना नहीं। अरे रुको रुको, आप खुद को मना सके, आप अपने मन को ऐसे बोल सके। कुड यू कंट्रोल योर माइंड? कुड यू कंट्रोल योर ओन सेंसेस? कुड यू कंट्रोल योर ओन इंटेलेक्ट? And when we are frustrated, failure, we started thinking that I will rule over my wife, my son, my daughter. Each and everyone is a separate jiva.
who has come in the form of your husband or wife or children or office boss. When I could not control myself, how I can proclaim that? How we can think about it? यही तो भेद है अज्ञान से। एक जमींदार को बहुत इच्छा हुआ क्योंकि उन्होंने स्वप्न देखा कि क्षीर समुन्दर में नारायण सोया हुआ, भगवान नारायण। उनको लगा कि मेरा इस बार गर्मी में तो पूरा सूख गया है जो तालाब था, और हमारे डायनेस्टी में बहुत प्रजा है, सबके घर में एटलीस्ट 4-5 करके तो गौ माता है, और इतना लोग है, अगर सब लोग एक लोटा करके दूध उसमें डालेगा तो ये तालाब दूध की हो जाए। तो राजा बहुत पॉपुलर था, सब लोग उनको प्रेम करते थे। राजा को भी बहुत अच्छा लगा कि अरे भाई, मेरा प्रजा मुझे इतना प्रेम करते हैं, तो सुनो, तुम सब लोग थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें डालो, मेरा इच्छा है। बोले अरे आपकी इच्छा ही तो हमारी इच्छा, यही तो भगवान को। लेकिन मैं भेद नहीं चाहता, ब्रह्म में है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिन में तुम लोग ढालो, क्योंकि मुझे तब भेद आएगा कि तुमने 1 लोटा दिया, उन्होंने 5 लोटा दिया, उन्होंने 50 लोटा दिया, तो तब मेरा प्रेम में डिवीजन आ जाएगा। तुम लोग रात के अंधेरा में यू जस्ट पोर मिल्क। बोला हाँ। और इतना डेडिकेटेड प्रजा था, सब लोग सच में ही रात को आया और उस तालाब को पूर्ण कर दिया। प्रातः जमींदार बहुत खुश है, ये मेरा प्रजा, मेरा बेटा जैसे अपना बेटा। जमींदार नींद से उठा, जाकर देखा ये तालाब पूर्ण हो गया, लेकिन दूध से नहीं, पानी से। सब लोग सोचा कि सब लोग तो दूध ढालेगा, अगर मैं 1 लोटा पानी दे दूं तो क्या बिगड़ जाएगा। In our own life, the same thing happens. We think जगत सुधरेगा, मेरा बच्चा सुधर जाएगा, मेरा बीवी सुधर जाएगा, मेरा हस्बैंड सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा। मैं ऐसे अगर, अरे भाई थोड़ा सा करने से क्या पूरा। आप लोग, आप देखेंगे, आप किसी को कुछ माना कीजिए, इधर मत फेंकिए, सब लोग तो फेंके हैं, अब मुझे क्यों मना कर रहे हैं। We think in that way. What everyone is doing, we are allowed to do that. भ्रांति कारणम। जब गुरु ने लाइट लेके आया, ये तुम झगड़ा बंद करो, क्योंकि झगड़ा चालू हो गया। उस रस्सी को देखकर किसी ने बोला ब्लैक कोबरा देखा, बोला नहीं ये चंद्रबोड़ा था। क्यों? बोला अरे नहीं, उतना ये चंद्रबोड़ा नहीं हो सकती, ये तो जल ढरा है। किसी ने बोला अरे सांप ही नहीं है, वो तो पेड़ से गिरा है कुछ। किसी ने बताया अरे नहीं, काल मैंने देखा एक व्यक्ति अपने माला को ऐसे करके फेंक रहा था, शायद वही माला है। तो गुरु, और लड़ाई चालू हो गया। आप देखिए ना, पूरा दुनिया में लड़ाई किस लिए है? ना तो जमीन आपकी है, ना जमीन मेरी है, ना किसी का है। जमीन तो पृथ्वी का है, और हम लोग 2 इंच जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है। गुरु ने लाइट लेके आया, बोला देखो बेटा, कुछ नहीं है, ना तो भूछेद है, ना तो सूखा हुआ माला है, ना तो डाल है, ना तो सांप है, ना तो चंद्रबोड़ा है, ना तो कोबरा है, ये एक रस्सी पड़ा हुआ है। So when that Guru Parampara brings that light of
our undivided existence in the whole world, then हमारे जिंदगी का सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। क्लियर? बस थोड़ा सा। और कितना दिन में प्रॉब्लम खत्म होगा, ये तो सवाल। इतना मनुष्य जन्म हुआ, प्रॉब्लम कब खत्म होगा स्वामी? कोई गुफा हजारों सालों से अंधेरे में पड़े हुए, कोई गया नहीं, सूरज भी उधर प्रवेश नहीं कर। आप अचानक कोपरनिकस बन के चला गया। आपके पास एक मैच बॉक्स है, आप बोलिए उस अंधेरा के दूर करने के लिए 1000 साल की जरूरत है? एक चिंगारी ही काफी है। लेकिन चिंगारी आएगा कैसे? अगर जो बारूद वो सूखा नहीं होगा तो लाखों बार घिसने से भी तो जलेगा। ये हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मेरा बारूद है। अगर इस बारूद को आप त्याग और वैराग्य की धूप से सुखा सकते हो, तो एक चिंगारी में ही ज्ञान आ सकता है कि तत्त्वमसि। तब गुरु को बार बार बोलने की जरूरत नहीं होता। मनुष्य 3 प्रकार की होती है। एक होता है उल्टा लोटा जैसे, अब जितना भी पानी फेंको, लोटा उल्टा है तो एक बूंद भी पानी उनके अंदर नहीं गया। और होता है सरसों की तरह। अब सरसों की तकिया हमारा बचपन में देखते थे, अभी नहीं। अभी तो नया जो जमाना आ गया, हमारे पुराने का सब नस्यात कर दिया। क्योंकि हमारा सबका माथा किसी का टेढ़ा था, किसी का फजली आम जैसा था, तो हमारा दादा परदादा नानी लोग सब सरसों का तकिया करके ये सोते सोते ये असली फुटबॉल की तरह हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। अगर उस सरसों इसी प्रकार से वो तकिया आप फाड़ दिया तो सरसों को आप इकट्ठा नहीं कर पाए। जिनका मन बहुत बिखरे हुए है उनके लिए ज्ञान मुश्किल है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति है जो 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से वेदांत सुन रहा है, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया। और उनको देखकर बाकी पड़ोसी लोग, उनका घर के लोग और डिसइंटरेस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड हो गया वेदांत। अरे भाई, मैं तो बचा हुआ हूं, ये व्यक्ति को देखो 40 साल से चिन्मय मिशन जा रहा है, इतना वेदांत, इतना आचार्य से सुनकर यही हालत हुआ। मुझे कुछ जरूरत नहीं, मैं तो मूविंग देखूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मस्ती में रहूंगा, क्या फायदा हुआ? लेकिन उसमें से भी कोई सीधा उल्ट लोटा जैसे हो, उनको जितना भी पानी दो थोड़ा तो रह जाए। 1000 साल की अंधेरा को दूर करने के लिए 1000 साल नहीं रह लगता है। But Gurudev has written, how can there be plurality in the infinite? How can there be differences in the changeless? How can there be distinction in the formless? How can there be diversity in the absolute? They are all impossible dreams. In the absolute, all names and forms which constitute the world of plurality are absorbed, just as the dream objects are absorbed in the waking consciousness. It is impossible for the waker to continue to see the dream also. जागे जथा सपन भ्रम जाई, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। जगा हुआ व्यक्ति का याद ही नहीं रहता है क्या स्वप्न देखा। It's very difficult to dream when you are waking up state. So
In the infinite consciousness, there is neither the perceiver, nor the feeler, nor the thinker. Therefore, there are no such distinctions as objects, emotions, and thoughts. The very ego is not there to perceive the plurality. Where the ego has ended, the perception of plurality must also end. It merges into the infinite experience which is present everywhere at all time. Once there is light, the darkness is completely lifted. Similarly, when ignorance has lifted, reality must rise in our experience. Avidya is removed with the apprehension of truth. How can there be any plurality at any time in that supreme non-dual absolute reality? Hari Om Tat Sat.